हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा फोन ही पता नहीं कहाँ चला गया। वेट अ सेकंड, आई विल कम बैक। भाई बेड पे ही पड़ा था, मैं बाहर भी देखा, ये गिर गया। भाई इसको चोट लग गई, ये मरने वाला है थोड़ी दिनों में, टैब बोलेगा ये। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले थे लाइफ चेंजिंग बुक्स, जिसको हम पढ़ रहे स्ट्रेट थिंकिंग स्ट्रेट। देखो यार, आजकल मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा माइंड पता नहीं मुझे और चीज़ों में डाली जाता है कि ये वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए। पर मैं पता नहीं क्या होता है, भगवान बनवाते हैं कोई और नहीं, कोई और क्या, भगवान ही बनवाते हैं भाई। पर कोई भगवान कह देता है बनाओ बनाओ बनाओ, कुछ ऐसा हो जाता है, मैं वीडियो बनाती हूँ पक्का। चलो, आज का हमारा चैप्टर है, दिख रहा है, स्टॉप थिंकिंग है। स्टॉप थिंकिंग है। This is the difficult. I never knew how to stop. It's easy to stay inside your head for hours, especially when you are in a bed at night. But I can confidently say that 90% all of my thoughts in past have been useless. I did not do anything with my thought. Most of the time, I did not solve a problem, nor did I try to understand difficult idea or concepts from books. I spend a lot of time in my head doing this. What if I fail? What if I get a cancer? What people will think I'm a loser. I do not want to be alone. I called that thinking। वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था स्टार्टिंग में, ये एक हमारा, मान लो ये हमारा ब्रेन है। जब हम ले डाउन होते हैं, रात को सोने के लिए जाते हैं, व्हेन वी नाइट गो टू स्लीप, आर थॉट in a second changing and giving something a sensation our body, like a positive and negative sensation we call. In a mind level, nothing is negative and a positive, it's only thought, the only language, as Sandeep Maheshwari say that. I call the thinking, but it was more like worry, stressing, freaking out, or call it whenever you want. I call it a Cupid mind. And with what, and the list goes on. I wonder what my boss thinking, ये बंदा अपने माइंड में सोच रहा है। I wonder what my boss thinking. What happen if I screw up and lost my job? I think he does not care about me. I just keep falling. Does she love me? Why does my life suck? Why is my life awesome? Why is my life awesome and other people's live are not? I do not care about my job. Is there something wrong with me? I cannot finish anything. What's wrong with me? I want to quit. मैं नर्वस होती हूँ तो मेरा को पता नहीं क्या हो जाता है। आज मैं नर्वस हो रही हूँ। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। What's the practical use of the above thought? Yes, I am waiting, still no answer. Exactly. Those type of thought are not helping us, but we all have them. So how do you get rid of them? Well, I have learned that you can not get rid of them. Remember, we cannot control our consciousness. We can only control what thought we follow through on. You only have to be aware of your thought. Acknowledge them, but never blame yourself or say, why do I have these thoughts? No one has the answer to that. It's better to be aware of your thought and decision. Decide what you will ignore and what will you give importance to. For example, the thought of quieting whatever.
I'm doing in my life has been on my mind as long as I remember. When I was in high school, I want to quit and just find a job. When I play basketball, I wanted to quit and later did quit. I can go on and go on until I reach the present. No matter how much I love what I do, the thought of quitting and just walking away show up in my mind at least 3 or 4 times a month. In the past, those thoughts cost me many night of sleeping. About 2 year ago, I had enough. I want to quit thinking. So I start becoming aware of my thought instead of always acting on every single thought I had. You do not control me. I would say to myself like a worrido, but it work. I'm a much calmer and happier because of it. When I want to quiet, I still listen to it, and because something it is a sign, but more often is just fear and are refusing to surrender to it, and neither should. अब आ गया इनसाइड योर थॉट विस आउटसाइड योर कंट्रोल. If you want to have useful thought, here's a rule of thumb. Thumb only think about thing you can control. The automatic ultimate about 90% of your thought, because there's a very little you control in life. ये देख लो. ओए, अब मैं पढ़ भी दूँ उसके अंदर क्या लिखा है. इफ यू वॉन्ट, ओ सॉरी, यहाँ पर लिखा आउटसाइड योर कंट्रोल एंड लाइफ इनसाइड ऑफ योर कंट्रोल. ओनली फोक. देखो यार क्या होता है पता है हमें. मान लो ये क्या बता रहा है, इसको बंदे को भी सुसाइड का थॉट आया था, मतलब एक गलत चीज़ का थॉट आया था और इसको वो नहीं करना था. फिर इसने ऑब्जर्व करना चालू किया था माइंड को, कि कैसे माइंड के थॉट को कैसे देखा जाए. तो इसने बहुत बुक पढ़ी होगी, तब जाके उसने, मुझे लगता है, ये बुक लिखी है. बेशक ही आज कहता है कि मेरी बुक डिफरेंट लोगों से अलग है. देखो यार, हमारे जितने भी संदीप माहेश्वरी हो गया, हमारे वो हो गया आचार्य प्रशांत जी हो गए, और एक मुझे नाम भूल गया गुरुजी का, उनका प्रेमानंद महाराज जी हो गए. ये सारे बताते हैं कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. आप अपने थॉटों पर ध्यान ना दीजिए. वो स्पेशली बोलते हैं, अगर आपने सुना हो, कहता है ये थॉट तो ऐसा है, इसे बार बार कुछ चाहिए होता है. वो एक स्टोरी सुनाते हैं प्रेमानंद जी महाराज. कहते हैं कि एक भूत होता है, चिराग से एक भूत निकला होता है. वो कहता है कि मुझे काम दो. वो काम कर देता है तो कहता है यहीं उठा के पटक देंगे, क्या तुमने मुझे काम नहीं दिया. तो वो कहता है कि राधा 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 नाम जपेंगे आप, तो आप अपने ब्रेन को काम देंगे और वो 24 घंटे फालतू चीज़ों में नहीं जाए. यही संदीप माहेश्वरी कहता है कि अपने थॉट को ऑब्जर्व करो. वो कहता है आप बैठ जाओ, अपने एक जगह बैठ जाओ और 1 घंटा सिंगल रह के देखो. उसने बोला कि सिंगल मतलब 1 घंटा कमरे में कुछ नहीं, ना फ़ोन होना चाहिए, टीवी बंद होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, और चुपचाप बैठ जाओ या लेट जाओ, कुछ भी करो, बस अपने थॉट को देखो. और वो भी कहता है कुछ नई नई तरीके अपनाओ. वो मानते हैं कि जैसे उनको कोई कोई साउंड सुनाई देती है, तो साउंड को आत्मा मानते हैं. उन्होंने बोला है इन चीज़ों में कि वही साउंड, साइलेंस ही हमारी आत्मा है. अब आचार्य प्रशांत पे आते हैं. अब आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड रिलैक्स रहे, तो आपको अपने माइंड को एक तो वो कहते हैं अकेले रहने सीखो, इंडिपेंडेंट बनो, एक ये वो कहते हैं. और वो कहते हैं कि आप अपने को फ्री मत रखो. जितना फ्री रखोगे उतने ही आपकी ताकत वेस्ट जाएगी. सही चीज़ पर ताकत लगाओ. वो कहते हैं कि आत्मा जो होती है, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं होता है. आत्मा तो जो करा लो वो कर लेती है आपके अकॉर्डिंग. अब वो कहते हैं, उन्होंने भी यही बात की है, माइंड को ऑब्जर्व करो. मैंने लिखा था, रुको एक सेकेंड, अब ढूंढना पड़ेगा. देखो, नजरिया है सुख दुख घटना को देखकर. संसार से मिला है हमें वो नजरिया, फैमिली, रिश्तेदारों, इन सबसे नजरिया मिला है.
आम इंसान होता है उसे सुख दुख को ही देखता है, जो ज्ञानी होता है तीन चीजों को देखता है, संसार को जो अंदर से देख रहा है, जो उसको देख रहा है। अब मान लो जो देख रहा है वो दृष्टा है, संसार है वो दृष्टा है, ठीक है। पता नहीं एक चीज था, सॉरी मैं भूल गई, पता नहीं क्या था। दृश्य, दृष्टा और साक्षी, ये तीन चीजें आचार्य प्रशांत जी ने बताई हैं अपने वीडियो में। देखो मैं नहीं बोलूँगी किसी की वेबसाइट पे जाओ या डाउनलोड करो, पर आप ना उनकी बहुत यूट्यूब वीडियो है, उनसे आप ज्ञान ले सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी आपको कुछ देना है और तभी कुछ मिलेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, माइंड के ऊपर बात होकर। माइंड बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, मुझे बहुत पसंद है माइंड के बारे में पढ़ना, मज़ा आ जाता है। ओनली फोकस ऑन वट यू कंट्रोल दीज थिंग लाइक डिजायर, एक्शन, वर्ड, इंटेंशन। वो कहता है कि आप चार चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो, कह रहा है। ओनली फोकस वट यू कंट्रोल थिंग लाइक डिजायर, ओनली फोकस ऑन वट यू कंट्रोल। कह रहा है ओनली फोकस ऑन वट यू कंट्रोल, कि तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो। चलिए ये थिंग लाइक डिजायर मतलब इच्छा, एक्शन कि अब मान लो मेरे पास पानी पड़ा है, मुझे डिजायर आ गया देखते ही और मैंने उसे उठा लिया, ये हो गया एक्शन। अब वर्ड, वर्ड मतलब वो लैंग्वेज ही को वर्ड कह रहा है। इंटेंशन, अब उसका इंटेंशन क्या है, हमारी नज़रिए में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब मान ले ये पानी है, अब ये पानी का इंटेंशन है कि मैं दूसरे के मुंह पे फेंक दूँ, ये इंटेंशन क्या है, गुड या बैड। इंटेंशन देखना है उसका माइंड के। अब चलो आगे बढ़ते हैं। If I speak in English is really amazing. I like to speak English like those actions. Oh my god, I like it. After this video finish, in 10 minutes I upload some other video also. Let's start. What's a useless thought? Anything out of your control and without a useful purpose. Do you ever think about the past? That's a perfect example of random thought that lack a purpose. Useless. You are reflecting on a past decision or mistake you made. In the case of reflection, you are doing something useful, but other than that, every thought about the past serve no purpose. From the point of view it's useless. Ever fantasize about a future, that also useless. I have discovered two main type of useless thought. Think about how you can solve problem. A problem problems. A problem is just unanswered question. Put your brain to use and think about how you can solve problem. There are a lot of those of on this earth. Understanding that meaning this try to inter रुक जो क्या लिखा है, internalize knowledge about knowledge and think about how you can use that knowledge to improve your life, career, work, relationship, etc. That's it. You can ignore every other thought if you are the consistently thinking without a useful purpose. It because you have not trained your mind yet. You have to get out of your head. If you are not, you'll go to mental. You'll go to matter. Every will know. Expect action. Ask yourself: Is it is worth it? Do you really want to waste your time, energy, and life on useless thinking? You and I both know the answer to that. Committed to stop thinking about useless things. Start taking control your mind. All that worry about the past and the future is not going to help you. I never did and it is never will. चलो यहाँ हो गया हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, वी मीट यू अनदर वीडियो टुमारो। देखो इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस में ये सीधी बात है, अगर आपको कोई भी हैबिट है, संदीप महेश्वरी कहता है, पर बहुत मुश्किल है। कहता है आपको जो भी डिज़ायर आता है, एक थॉट आता है उसके साथ एक एनर्जी आती है, तो वो कहता है आप उस एनर्जी से ही भागते हो। सॉरी ये आचार्य प्रशांत कहता है, ये संदीप महेश्वरी, सारे तीनों जने ना कहते सेम ही है, पर वो अलग अलग नज़रिए से कहते हैं अपने। ध्यान से देखो तो वो कहते हैं कि आप बैठ जाओ और बैठ के देखो अपने थॉट को,
कहता वो देखना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड में चेंज हो जाएगा, फिर आपको पूरी तरीके से समझ आएगा जिस वजह से आप तड़प रहे हो वो कुछ है ही नहीं, जस्ट एक सेंसेशन था जो चला गया। पर उससे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई, बहुत। पर उसे बैठने के लिए, उसे सहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। है तो कर लो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।